خدا ہماری زندگی میں اچھے کیا کرتا ہے. ہمارا جیسے کہ ٹاپک ہے آج کا کہ آئی ایم اے چیمپئن آف گاڈ. ہم خدا کے فتح مند ہیرو ہیں, ہم فتح مند لوگ ہیں, فتح مند جنگجو ہیں. تو اس کی آگے والی آیت میں لکھا ہے 37 آیت ہم پڑھیں گے, رومیو 8 باب کی 37 آیت. مگر ان سب حالاتوں میں اس کے وسیلہ سے, مگر ان سب حالاتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی, ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے. اگر ہم لوگ اس آیت پر غور کریں, ہم سے محبت کی, ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے. اگر ہم اس کی انگلش ٹرانسلیشن پڑھیں تو یہ کمپوز اس کا مطلب ہے کہ چیمپئن, ہیرو, فتح مند. تو ہمیں فتح سے بھی بڑھ کر کرتا ہے. اگر ہم اس کا میننگ ڈھونڈیں تو وہ میننگ ملے گا نہیں. کہ فتح سے بڑھ کر کیا ہے, فتح سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی ایسا الفاظ نہیں جو اسے ایکسپلین کر سکے. تو فتح سے بڑھ کر کیا ہے, خدا نے ہماری زندگی میں ایسا کر دیا ہے. ہماری زندگی میں اپنے آپ کو, جب ہماری زندگی میں یسوع مسیح آتا ہے, اس کا جلال, اس کا فضل, اس کا پاک روح جب ہم میں آتا ہے تو ہم ایک چیمپئن بن جاتے ہیں. ہماری زندگی میں خدا نے جو ہمیں فتح مندی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر غلبہ دے دیا ہے. ایک فتح ہوتی ہے, ہم اس سے بھی بڑھ کر اپنی زندگی میں خدا کے نام کو جلا دیتے ہیں. ہر ایک ابلیس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ ہم سے محبت کی, ہم کو فتح سے بڑھ کر بھی غلبہ حاصل ہوتا ہے. جب خدا نے ہمیں خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہی بخش دیا. آج اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ اپنے بیٹے کو میری خاطر قربان کرے گا, کوئی بھی کرے گا. لیکن خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے ہمیں فتح سے بڑھ کر بھی غلبہ حاصل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے جب اپنا بیٹا دے دیا, اسے ہماری خاطر پناہ ہونے دے دیا, اسے ہماری خاطر صلیب پر دے دیا, تو اس کا جو روح ہم میں آتا ہے وہ ہمیں فتح مندی کرتا ہے, ہمیں فتح مند کرتا ہے. ہمارے اندر ایک چیمپئن روح پیدا کرتا ہے. ہمارا جو زندہ خدا ہے, خدا کا خداوند ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, تو وہ چیمپئنس کا چیمپئن ہے. تو اس کا روح ہم میں ہے, تو ہم بھی کیا ہوئے, چیمپئن ہوئے. جب ہم چیمپئن ہیں تو ہماری زندگی میں کوئی دکھ, کوئی مصیبت, کوئی پریشانی ہو تو ہمیں اس کا کیا مقابلہ کرنا ہے, کیونکہ خداوند نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کرنے کی قدرت اور طاقت بخشی ہے. تو ہماری زندگی میں جتنی بھی کشموں کا شاتی ہیں وہ ایک ٹیمپریری ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک لائن آگے بتائی کہ انگلش رائٹر ہے, اس نے یہ بیان کیا کہ خدا ہماری زندگی کو سلو کرتا ہے. اس نے یہ الفاظ خدا کے روح سے ہی سوچ سمجھ کر بیان کیے ہیں کہ جب خدا ہماری زندگی کو سلو کرتا ہے تو ابلیس ہماری زندگی سے کراس ہو جاتا ہے, تو پھر خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے تاکہ ہم اس ابلیس سے بچے رہیں, تاکہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. تو ہمارے اندر خدا کا روح ہے, ہم اس کے چیمپئنز ہیں. تو ہماری زندگی میں جب کچھ چھوٹی موٹی, کوئی بڑی بھی اگر پرابلم آتی ہے تو ہمیں خدا کے حضور جھکنا ہے, اس سے قوت اور طاقت مانگی ہے. یسوع نے کہا, جب تمہیں خدا روح ملے گا تو اس کی طاقت تم کو ملے گی, اس کی قدرت تم کو ملے گی, اور تم دنیا کے انتہا تک, آخری حصہ تک میرے گواہ ٹھہرو گے. تو جب ہمارے اندر خدا کی طاقت آئے گی تو ہمیں یہ زمینی دکھ درد کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, ہماری مصیبتیں کچھ بھی نہیں ہیں, کیونکہ خدا نے ہمیں اپنے روح سے معمور کر دیا ہے. ہمارے اندر اس کا روح ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے, ہم اس کے چیمپئنز ہیں, ہمیں اس نے فتح مندی سے بھی بڑھ کر غلبہ دیا ہے. تو ہماری زندگی میں یہ دکھ درد مصیبتیں کچھ بھی نہیں ہیں. اگر ہم کسی خط کے اوپر 31 آیت پڑھیں, بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں, اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارے طرف. میں اس پیراگراف سے آگے پیچھے نہیں ہوا, اسی حوالے کے اندر میں نے 3 آیتیں وہ پڑھا ہے. پہلے 28 تھی, پھر 37, پھر 31. اور 31 آیت میں کہتے ہیں بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں, اگر ہم خدا ہی ہماری طرف ہے تو کون ہمارے خلاف. جب ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو کوئی انسان ہمارا کیا بگاڑے گا, کوئی ابلیس ہمارا کیا بگاڑے گا. لیکن پہلے کیا ہے, ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. جب خدا ہمارے ساتھ ہوگا تو کوئی مخالفت نہیں ہوگی, کوئی انسان آپ کے مخالف نہیں ہوگا. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ انسان میرے خلاف ہے, انسان کے کبھی بھی خلاف نہیں ہوگا. ہمیں کبھی غور کرنے کی ضرورت ہے. جب ایک انسان ہے جس کے اندر خدا کا روح ہے, ایک انسان ہے جس کے اندر ابلیس ہے, تو وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف کیوں ہیں. وہ انسان بھی خلاف, جو ان کے اندر ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہے. تو خدا کو ابلیس نہیں پسند اور ابلیس کو خدا نہیں پسند. اس کی وجہ سے وہ انسانوں کے اندر تکرار کو پیدا کرتا ہے, ان کے اندر دشمنی کو پیدا کرتا ہے, ان کے اندر بدعتوں کو پیدا کرتا ہے, ان کے اندر مخالفت کو پیدا کرتا ہے. تو کیا ہے کہ جب اس کے اندر بری روح ہوگی اور ایک انسان کے اندر اچھی روح ہوگی, یا دونوں کے اندر بری روح بھی ہوگی, تو دونوں ایک دوسرے کو لڑوائیں گی. کیونکہ ابلیس کا کام کیا ہے, ہمیں لڑوانا, ہمیں جھگڑانا, ہماری زندگی میں خلل کو پیدا کرنا, ہماری زندگی کو کشمکش میں ڈالنا. تو جب ابلیس ہمارے درمیان آتا ہے تو وہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کر دیتا ہے.
वही चीज़ अगर खुदा हमारे साथ होगा, खुदा का रूह हमारे साथ होगा, तो हम हमारे खिलाफ कोई नहीं होगा, हम किसी के खिलाफ नहीं होंगे, सिर्फ हम खुदा के नाम को जलाल देने वाले बनेंगे। हम जब खुदा के चैंपियंस हैं, तो खुदा हमारे साथ है, तो हमारे खिलाफ कौन होगा? जब चैंपियंस हम हैं, जब दाऊद खड़ा होता था, जब दाऊद फर्स्ट टाइम जाती से लड़ने गया, तो उसने कहा तू तो ढाल और भाला लेके आता है, मैं किसके नाम से आता हूँ? हालेलुया। जब हम खुदावंद रब्बुल फाज के नाम से जाते हैं, खुदावंद रब्बुल फाज हमारे साथ होता है, तो हम फतह मद से भी बढ़कर गलबा हासिल कर सकते हैं। हम उसके चैंपियंस हैं। अगर हम फतह को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो ये चैंपियन है, तो हम चैंपियंस हैं। जब हम चैंपियन हैं तो हमारी ज़िंदगी में ये मुसीबतें दुख कुछ भी नहीं है, क्योंकि खुदा ने हमारे साथ होना है, तो हमारे खिलाफ कोई भी नहीं हो सकता। हम हमेशा फतह मद ही होंगे। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, पहला पत्रस उसका 2 बाब 9 आए। इसमें खुदावंद ने, हम चैंपियंस हैं, तो खुदावंद ने कुछ बयान किया है कि हम चैंपियंस के लिए बरकत कैसे हैं, खुदावंद ने हमें कैसे लक़ब दिए हैं, कैसे खिताब दिए हैं। मेरे साथ पहला पत्रस उसकी 2 बाब और उसकी 9 आयत हम पढ़ेंगे। जिसको मिलता है वो ऊंची आवाज़ में पढ़ने में रहम नहीं करें। पहला पत्रस 2 बाब उसकी 9 आयत। लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कानूनों का फिरका, मुक़द्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदावंद की खास ममलकत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। आमीन। जैसे कि मैं खुदा के कलाम से मैं फिर रिपीट करता हूँ, पहला पत्रस उसका 2 बाब और 9 आयत। लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल हो। सबसे पहले खुदा ने हमें क्या डिफाइन किया है कि हम नस्ल कौन सी है? हम बरगज़ीदा नस्ल हैं। दूसरा शहीद कायनों का फिरका, हम बरगज़ीदा नस्ल भी है, और हमारे अंदर कौन सा हमारे अंदर ब्लड है जो हम फिरका, हम किस कौन से हैं? शाही कायनों से। हम कोई कॉमन लोग नहीं है, शाही कायनों का फिरका है, खुदा के चुने हुए लोग। फिर मुक़द्दस को, हम कोई लोकल या बदी से भरे हुए लोग नहीं है, खुदा ने हमें मुक़द्दस ठहराया है, हम मुक़द्दस कौम है। और ऐसी उम्मत जो खुदा की खास मलकियत है। जैसे हम कहते हैं ये मेरे बाप दादा की एक खास मलकियत है, ये मेरी खास मलकियत है, ये मेरी एक खसूस चीज़ है, खसूस जगह है, कुछ भी है। तो हम भी जो कौम है, जो मसीही हैं, हम खुदा के खास लोग हैं। हम लोकल नहीं है, हम ऐसे इधर उधर के लोग नहीं हैं, हम इधर उधर टामाटोल होने वाली कौम नहीं है। हम खुदा के बरगज़ीदा नस्ल में से हैं। हम शाही काहिनों का फिरका है। हम एक उम्मत है, खास उम्मत है, और खुदा की खसूस मलकियत है, बहुत ही कीमती। अगर हम लोग इस चीज़ पर गौर करें तो हम अपनी ज़िंदगी में और इन आयात पर गौर करें तो हम लोग बहुत आगे पीछे हैं। जब हमारे लिए खुदा ने इतने बड़े खिताब दिए हैं, हम उसके चैंपियंस हैं, हम उसकी बरगज़ीदा नस्ल है, हम उसकी मुक़द्दस कौम है, हम शाही कायनों का फिरका है, हम उसकी खास मलकियत है, तो फिर भी हम लोग अपनी ज़िंदगी में इन दुखों दर्दों को लेकर क्यों बैठे रहते हैं? हम उसके नाम को जलाल क्यों नहीं देते? हम अपनी इसका मुकाबला क्यों नहीं करते? हमारी ज़िंदगी में कोई भी दुख आता है, हम मिनट में नीचे गिर जाते हैं। ओ खुदा नहीं लगोगे, अन्नियाँ दुआवा की, अन्य रोते रहते, अन्य हदिये कटे, अन्य दे ये चर्च की अन्य गया हुआ सुबह शाम दुआ की है, फिर रब हम नहीं लगोगे। खुदा ने कैसे आपको बोला? खुदा ने तो तुम्हें पहले ही एक शाही कायनों का फिरका बना दिया है, खास मलकियत है हम उसकी, हम उसके चैंपियंस हैं। तो उसने हमें आज़माइश में नहीं डाला, क्योंकि पौलुस रसूल ने करंथियों खत में कहा है कि वो हमें आज़माइश में नहीं डालता, बल्कि अगर हम आज़माइश में आ भी जाते हैं तो वो हमें उसमें से निकलने का रास्ता देता है। तो हमें वो आज़माइश में कैसे डाल सकता है? रोमियो खत में लिखा है कि हमारी जो जिस्मानी ख्वाहिश है वही गुनाह को जन्म देती है। जब हम लोग अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को छोड़ेंगे और रूहानी चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी में आज़माइश आ ही नहीं सकती। जब हम लोग दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते हैं, घर दौलत पैसा ऐशो इशरत फोटो चीज़ों के पीछे जब भागते हैं तो हमारी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों की तरफ भागती है, आज़माइशों में आती है, हमारी तकरारें बढ़ती हैं, मुसीबतें बढ़ती हैं। जब हम दुनियावी चीज़ों की तरफ भागते हैं, पीछे लिखा हुआ है कि रूह की नेमतें और जिस्मानी मसलाहत क्या है, मतलब जब हम रूह में सोचते हैं तो हमें रूह में बरकत मिलती है, हम रूह में तरक्की पाते हैं। लेकिन जब हम जिस्मानी कुव्वत के बारे में सोचते हैं, जिस्मानी चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हम जिस्मानी हो जाते हैं और गुनाह को जन्म देते हैं। हम लोग खुद हैं जो इब्लीस को मौका देते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में आए, रुकावट पैदा करे। तो ये क्या है? खुदा हमारी ज़िंदगी में आज़माइश नहीं लाता, उसने हमें चैंपियंस बनाया, हमें फतहमंद कौम बनाया है, हमें शाही कायनों का फिरका है, उसकी खास उम्मत है। तो वो हमें कैसे मुसीबत में डालेगा? वो तो हमें हमेशा बरकतों से मालामाल करता है, क्योंकि उसके वादे भाग्य साथ हैं। उसने हमें हर एक चीज़ देने का वादा किया है। अब खरूज की किताब में उसके 23 बाब में एक वर्ष है कि तुम मेरी इबादत करो तो मैं तुम्हारे रोटी और पानी में बरकत दूंगा और तुम्हारे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा।
हालेलुया। जब खुदा हमसे एक चीज़ मांगता है, हम उसकी कंटिन्यूसली एक मुत्तफिक होकर दिल से इबादत नहीं करते, तो खुदा हमारी रोटी पानी पे कैसे बरकत दे, वो हमारे बीच में से कैसे बीमारी को निकालेगा। उसने बोला है कि तुम मुँह से तो मेरा इकरार कर दो, लेकिन दिल तुम्हारे मुझसे दूर है। जब हम दिल से उसका इकरार करेंगे, दिल से उसकी हमदो सताइश करेंगे, तो फिर जाके वो हमारी ज़िंदगी में हमारे रोटी पानी पे बरकत देगा और हमारे बीच में से बीमारी को निकालेगा। लेकिन जब हम सिर्फ मुंह से उसकी प्रस्तिश करेंगे, उसके नाम को जला देंगे, तो वो हमारी नहीं सुनेगा। क्योंकि हम मुंह से सब कुछ करते हैं, दिल से नहीं करते। हम मुंह से नहीं करते, हम सिर्फ मुंह से करते हैं। जैसे जिस्म की ख्वाहिश रखते हैं और जिस्म के अल्फाज हम बोलते हैं, वैसे जब हम मुंह से बोलेंगे तो खुदा हमारी सुनेगा, क्योंकि खुदा रूह है। उसको रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वाले पसंद है। जब हम रूह से और दिल से प्रस्तिश करेंगे तो तब हम उनसे पसंद आएंगे। मेरे पास एक कहानी है, शेयर करूँगा। एक ना अमेरिकन एक चेस खिलाड़ी था। शतरंज किसी ने सुना हो? शतरंज की गेम पुराने ज़माने में ज़्यादातर लोग खेलते थे, आज तो उसे बिजनेस सच कहते हैं, चेस कहते हैं। तो शतरंज की गेम का एक खिलाड़ी था, बहुत बड़ा, मतलब एक मशहूर खिलाड़ी था। तो वो ना एक दिन अपनी गेम से फारिग था, तो मतलब रेस्ट में था। तो उससे पता चला कि एक एग्जीबिशन हो रही है, मतलब एक और ये एग्जीबिशन को आर्ट वगैरह कहते हैं, जहाँ पर पुरानी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर नुमाइश हो रही थी, तो वहाँ पर कुछ नायाब चीज़ों की नुमाइश थी। तो उसने सोचा कि मैं देखने चलता हूँ, वहाँ पर जाके देखूँ नुमाइश कैसी है। US का पड़ता था उसकी कहानी है। तो वो नुमाइश में गया, उसने सारा दिन मतलब अपना उसी नुमाइश के ऊपर गुजारा। उसने बहुत सी चीज़ें देखी। एंड में वो जाते जाते ना उसकी नज़रों के सामने एक शतरंज की तस्वीर आ गई, पेंटिंग आ गई, जो एक बहुत बड़ा पेंटर था उसने बनाई थी। तो उसकी पेंटिंग आ गई उसके सामने। तो उस पेंटिंग को देखना शुरू हो गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी था, उसे पसंद थी शतरंज खेलना। तो उस पेंटिंग को देखना, उसने पेंटिंग की एक आखिरी सतह, मतलब जो गेम प्ले हुई थी उस पेंटिंग के अंदर, तो खेल चला था, उसको नोट किया। उसको देखा, जो 10 मिनट 20 मिनट आधा डेढ़ घंटा 2 घंटे गुजर गए। तो जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था उसने बोला, सर आप इसी जगह पे खड़े हैं, क्या हो गया, आगे पीछे नहीं हो रहे, आप किसी और चीज़ को नहीं देख रहे। उसने बताया कि मैं शतरंज का खिलाड़ी हूँ, तो मैं इस गेम को देख रहा हूँ। इस गेम को जिसने बनाया है वो ठीक है, लेकिन इस गेम को जिसने खेलते हुए मतलब देख के बनाया वो क्या है। तो उसने बोला, सर ये पेंटिंग बड़े मशहूर आर्टिस्ट की है, तो ये तकरीबन 4 करोड़ रुपये की पेंटिंग बनती है कि अगर आप कन्वर्ट करें तो। वो कहता है, यार पेंटिंग मेरे लिए ख़राब नहीं है, पेंटिंग बहुत अच्छी बनी है, लेकिन पेंटिंग के अंदर जो खेल है वो गलत है। अगर सर वो कैसे? कहते हैं, यार मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, मेरी उम्र गुजर गई है, मैंने ये खेल खेला है, तो मुझे पता है ये पेन गलत है। उसने बोला, इस पेंटिंग के जो मालिक है जिसने इसको बनाया उससे बोला। उसने बोला कि सर वो तो कहीं और उसको टाइम लगेगा था, जब भी वो आए उससे मुझसे मिलवाना। वो चला जाता है। तो जब पेंटिंग का जो ओनर था जिसने बनाई है वो बड़ा खुश होता है कि यार चेस का एक बड़ा शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी से मेरी पेंटिंग देख के मुझे बुलाया, मतलब उसे पसंद आ गई, वो खरीदेगा, उसके माइंड में ये आया। लेकिन जब वो आया तो दोनों बात कर रहे थे, तो उसने बोला कि सर आपकी पेंटिंग, कहता सर पेंटिंग आपको पसंद आ गई है? सर मुझे पेंटिंग पसंद आ गई, ताकि पेंटिंग बड़ी चंगी है। उन्होंने कहा तुम खरीदो? बोलेगा मैं खरीदा नहीं, ताकि गलती कटागा, पेंटिंग तुम बहुत अच्छी बनाई, ताकि बड़ी एक कला है, बड़ी अच्छी उसी पेंटिंग बड़ी अच्छी तरीके ड्रॉ किया है, लेकिन जी चीज़ तुझे जो फीड की थी, मतलब इसको खेल को बनाया, ये खेल गलत। उसने बोला सर खेल पूरा एग्जैक्ट है, इस तरफ का ब्लैक होती है, इस तरफ वाइट होती है। उसने बोला एग्जाम्पल करने की, ये डेवल है, ये एक अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, तो खेल रहे हैं तो वो जीत गया बुरा इंसान। उसने बोला नहीं, उसने अपनी सारी चाल चल दी है, उसने भी आपको लग रहा सारी चाल चल रही है, नहीं। उसने बोला कि आपको गलत फहमी हुई है कि उसने अपनी सारी चालें चल दी है, उसकी अभी भी एक चाल बाकी है। तो उसने किस चीज़ को डिफाइन किया कि उसने चेकमेट लिख के लिख दिया था कि चेकमेट मतलब खेल खत्म। उसने बोला कि खेल ही खत्म हुआ, उसको गलत फहमी हुई है, मतलब कि जो आदमी था ब्लैक रोटी वाला, मतलब एग्जाम्पल करेंगे वो प्लीज था, उसको गलत फहमी हुई कि मैंने इस इंसान को चेकमेट कर दिया, मतलब उसका खेल खत्म कर दिया, या प्लीज से ये मेरी मतलब प्रॉपर तौर पर मेरे कब्जे में आ गया। लेकिन खुदा का अभी भी एक खेल बाकी होता है। जब उसने बताया कि ये सारी खेल एग्जैक्ट है, लेकिन उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि इस बंदे के पास अभी भी आखिरी दाव बाकी है, जिसकी वजह से वो जीत चुका है। आपने पेंटिंग ये गलत है। तो इसको डिफाइन करने का मतलब ये था कि हमारी ज़िंदगी में भी एग्जाम्पल है कि इब्लीस बहुत सी बातें पैदा करता है, कई दफ़ा ऐसी करता है कि हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी कश्मोकश में बन जाती है, मुसीबतों दुखों में गुजर जाती है, हमें समझ नहीं आता कि खुदा हमारे साथ है या नहीं है।
लेकिन जब हम ईमान रखते हैं और कलाम को सुनते हैं, कलाम कहता है कि खुदा मेरे साथ में बोलने का लाया था, उसने हमें शाही कायदों का फिरका बनाया है, मुकद्दस कौम बनाया, उसकी खास पंथीयत है और इसी तरह नस्ल है। तो हमारे अंदर खुदा का रूह है, जब हमारे अंदर उसका रूह बसा है तो हम वो हमारे साथ है। लेकिन जब हम लोग ज़िंदगी की कश्मकश में आते हैं तो जैसे इब्लीस उसने कहा चेक में खेल खत्म, तो हमारे ज़हनों में आता है कि हमारा खेल खत्म, हमारी ज़िंदगी ऐसे रहती है, हमने तरक्की ही नहीं करनी, हमने मुसीबतों में ही रहना, हमने दुखों में ही रहना, हम कभी अच्छी कमाई नहीं कर सकते, हम कभी खुदा कभी अच्छे नहीं हो सकते, हम कभी खुदा की शुक्रगुजारी लोगों का मोटिव होता है कि यार मेरे पास पैसे हो तो शुक्रगुजारी करो। नहीं, कलाम कहता है कि तू अपने होठों का नजराना मेरे नजर का, मुँह से शुक्रगुजारी कर, उसके हम के गीत का। तो हमें इन चीज़ों में कश्मकश में रहते हैं, हम खुदा को भी याद करना भूल जाते हैं कि यार साढ़े को पैसे नहीं आए, खुदा को भी याद करते हैं, खुदा हमारे पैसों का भूखा है, वो हमारे दिलों और रूहों में। तो हमें जब हमारी ज़िंदगी में अपनी ऐसी चीज़ रखता है तो हमें सोचने की जरूरत है कि खुदा का भी आखिरी का वो बाकी है, क्योंकि खुदा अपनी चाल प्रॉपर अभी तक नहीं चला। खुदा के कलाम में लिखा है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो इंसान वो आखिरी मौका तक उसको आखिरी टाइम तक उसको मौका देता है कि इंसान चेंज हो। प्रकाश में किताब में लिखा है कि खुदा किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता, वो आखिरी मोहम्मद तक आखिरी वक्त तक उसको टाइम देता है कि वो चेंज हो, वो खुदा को पहचाने। तो खुदा का जो हमेशा एक दाव होता है, आखिरी चाल होती है, आखिरी हिस्सा होता है, वो खुदा हमारी ज़िंदगी में बचा के रखता है और एंड टाइम पे शो करता है। लेकिन जब हम अपनी इसकी सुनते रहते हैं कि वो कहता है चेक मेल मतलब हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई, हम अपनी इसके फंदे में फंस गए हैं, तो हमारी ज़िंदगी में खुदा का कलाम ज़ाहिर नहीं होता। तो खुदा ने हमें पतामंदी से बढ़कर गलबा दिया, मतलब हमें चैंपियंस बनाया है। चैंपियन वो होता है जो कभी भी नहीं हारता, कभी भी नहीं हारता। कौन सा ऐसा चैंपियन है जो कभी हारा है? कोई भी नहीं। हमारा खुदा कभी हारा है? वो चैंपियन है, वो कभी नहीं हारा। अगर शरीयत की किताब से लेकर अभी तक देखें, मूसा ने अपनी को हराया, यसाया ने हराया, यशवा ने हराया, एलिया ने हराया, अलीशा ने हराया। फिर एंड टाइम पे जब हम इस फजल के दौर पे आते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने इब्लीस का काम ही खत्म करके उसे अपने पांव तले कुचल के इब्लीस की सारी ताकत पर गालिब पाया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब खुदा यीशु मसीह ने इब्लीस को जमीन तले कुचल दिया, अपने पांव तले कुचल दिया, तो इब्लीस हम पर कैसे गलबा पा सकता है? जब उसने अपना रूह, वही रूह जो खुदा यीशु मसीह के था, उसने अपना रूह हमारे अंदर दे दिया। जब उसने उसी रूह के वसीला से कुदरत से इब्लीस को पांव तले कुचला, तो हमारे अंदर भी खुदा का रूह है, तो हम भी इब्लीस को अपने पांव तले कुचल सकते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तुम जाओ और इब्लीस की सारी ताकत पर गालिब पाओ, सबको कुछ और इब्लीस की सारी ताकत पर गालिब पाओ। तो जब खुदा हमसे कह रहा है कि हम उसके ताबे हो तो इब्लीस को कुचल सकते हैं। जब हम शैतान इब्लीस छापों दुश्मनों का कुचल सकते हैं, पाँव तले उसकी सारी ताकत पर गालिब पा सकते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में डाउट किस चीज़ का है? हमारी ज़िंदगी में जो नुकता है वो किस चीज़ का आ रहा है? हम कश्मोकश में क्यों है? जब खुदा कहता है कि तू मेरी इबादत कर, मैं तेरे रोटी पानी को बढ़कर दूँगा, मैं तुझे फतामंदी से बढ़कर गलबा देता हूँ, कुदरत देता हूँ, ताकत देता हूँ, तुम्हें शाही कायदों का फिरका बना चुका हूँ। तो हमारी ज़िंदगी में इतना सब कुछ उसने बख्शा है। तो हमारी ज़िंदगी में एक डाउट होता है, डाउट भी कहते हैं और डोट भी कहते हैं, दोनों में है। डोट जहाँ लग जाए उसके पास स्पेस आ जाती है, उसके बाद काम खत्म हो जाता है, फिर अगला काम शुरू होता है। तो हमारी ज़िंदगी में भी जो नुकता है, डोट है, वो किस चीज़ का नहीं होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में सिर्फ खुदा और यीशु मसीह होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जब हम उसके चैंपियन हैं, वो हमारा चैंपियंस का चैंपियन है, तो हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। खुदा हमारे साथ है तो हमारे खिलाफ कोई भी नहीं हो सकता। तो मैं ईमान रखूँ, खुदा आज के कलाम के वसीला से को बरकत दे और अपने अंदर एक चैंपियन की स्पिरिट को हासिल करें। जो रूह है खुदा का, उससे सोचिए कि खुदा का चैंपियन रूह हमारे अंदर है, तो हम भी चैंपियन है। जब हम चैंपियन है तो हमें किसी का डर नहीं है। ज़बूर में इसमें लिखा है कि मेरे साथ खुदा है, मेरी कुम्मत खुदावत से है, मेरी ताकत मेरी चट्टान, मेरा सिफर मेरी ढाल खुदावंद है, तो मुझे इंसान मेरा क्या बिगाड़ेगा? कलाम में लिखा हुआ कि इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकता है? तो जब हम हमारे अंदर खुदा का रूह है, हम चट्टान हमारी वो है, तब्दीला वो है, तो इब्लीस या इंसान हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा हमारे साथ है और कोई हमारे मुखालिफ नहीं है।